Good evening, students. Today we are going to discuss idioms and phrases. What is idioms? Idioms are the phrases. And what is phrases? Phrases are the group of words. And the difference between idioms and phrases is that phrases are the group of the words which may or may not have particular meaning. Those group of words have particular meaning is called idiom, and phrases are just group of the words. This is the basic difference. So according to definition of idioms, group of words that describe a particular situation, means a group of words which describes a particular situation or meaning of something, particular situation or particular meaning of something, but not directly with the words used in the sentence. That is, they don't have direct meaning, but with the expressions of the words, means there is no literary meaning, but that is particular meaning of something is called phrases. Which have particular meaning is called idioms. That is the simple definition of idiom. So let us see what are they. Be hand and foot means to complete any task in all possible ways or by all means. Means be hand and foot means your hands are also engaged when you do something. So your hands and foot are engaged for particular thing, means you are wholeheartedly involved. That particular meaning is called, that's a means to complete any task in all possible ways by all means anyhow you have to complete the task you have involved with your hands and foot. This is the simple meaning. Now moving to next. Be in the swim means to keep oneself informed or to and up to date, means you have to inform. Be in the swim means be in the current, or means we have to be updated. That is called be in the swim. Then can't cut the mustard means someone who is not adequate enough to complete to compete or participate, means that's not cup of tea. I am incapable to do so. Can't cut the mustard, I cannot cut the mustard, means I am not able to compete or participate in that particular task. Okay. Now next one is beat around the bush, means when we talk here and there but we don't want to discuss something, or we don't discuss the main point, that is trying to avoid subject or person or situation, trying to avoid either subject or person or situation, but we don't want to talk any particular thing, then we use beat around the bush. Then kill two birds with one stone, means when we do one thing, when one efforts solve two purposes, is called kill two birds in one stone. Then beating a dead horse, as that phrase suggests that we are just wasting our energy and time, meaning giving time and energy to something that is ended or over, that is already done. Dead horse means that's a dead horse, but still we are just wasting our time for dead project or something. Cost an arm and a leg means arm and leg means something that is overpriced or very expensive. Cost an arm and leg means when our organs, our body part, when so that's a very costly, our body part is so much costly. So as this way you can remember, cost an arm and a leg means something that is overpriced or very much costly. Then variety is the spice of life. So we need to have variety. Same monotony, stereotype life
creates monotony, and that is why variety is the spice of life, means new and exciting experiences make life more interesting. So we have to do something new in our life. Wake the dog means to change the topic from something that is more important to something that is not. So wake the dog means we are just changing, avoiding the topic which is to be discussed, which should be discussed, which is very important. Thumb one's nose means a gesture of disrespect. Nose, nose is the very important part of our body, and when someone thumb one's nose means gesture of disrespect. So that is something which is what we can say, that's a matter of disrespect. Now in Hindi, we hand and foot, जैसे कि नाम से पता चलता है कि हमारे पूरी तरह से हाथ पैर, हम हर कहते हैं हाथ पैर मारो, कैसे भी करो, मैंने हाथ पैर मारे, बहुत हाथ पैर मारे, मतलब पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व था। तो ऐसे याद रखो, बी हैंड एंड फुट मीन्स मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, बाय ऑल मीन्स कि किसी तरह से हो जाए। तो बाय ऑल मीन्स बी हैंड एंड फुट, जब मैंने बहुत हाथ पैर मारे। फिर बी इन द स्विम, तो मैं तैर रहा था, तैरने की कोशिश की मैंने। तो उस तरह से कि आप हमेशा तैरते रहो, मतलब हमेशा अपडेट रहो, तो करंट में रहो, उसको कहते हैं बी इन द स्विम। फिर कांट कट द मस्टर्ड, तो मैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा कहते हैं ना, और सॉरी मैं नहीं कट कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी मेरी लिमिट के बाहर है, तो कांट कट द मस्टर्ड। बीट अराउंड द बुश मीन्स, अरे कहते तो इधर उधर की बात मत कर, हाँ ये बता कि ऐसा हुआ क्यों, तो उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। अब बुश के आसपास मारने से कोई मतलब नहीं है, जो बात है पॉइंट की बात वो कहो। फिर किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 निशाने मारना। फिर बीटिंग अ डेड हॉर्स, अब आप ज़बरदस्ती सिर पीट रहे हो किसी के आगे, जो ऑलरेडी कुछ नहीं हो सकता, वो मैटर क्लोज है। तो बीटिंग अ डेड हॉर्स, क्योंकि डेड हॉर्स में कोई जान नहीं है, वो मैटर क्लोज हो चुका है, उस पर एफर्ट्स लगाने से कोई मतलब नहीं। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अब जब अगर आपके आर्म, हमारी बॉडी का आर्म, लेग, हर बॉडी पार्ट कितना इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो हमारी लिमिट के बाहर है। जो कोई चीज़ जो ओवर प्राइस है या बहुत एक्सपेंसिव है, हम सोच भी नहीं सकते उतना, तो वो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। फिर वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, लाइफ में भी वैरायटी चाहिए, जैसे खाने में स्पाइस चाहिए, थोड़ा मसाला चाहिए, कुछ चाहिए, उस तरह से वैरायटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मोनोटोनी या एक जैसी लाइफ में चार्म ख़त्म होता है या डलनेस आती है, लिथार्जी हो जाते हैं हम। फिर वेग द टेल मीन्स चेंज द टॉपिक फ्रॉम समथिंग, जैसे ही अगर कोई बात हमने चेंज कर दिया टॉपिक, तो वेग द टेल, जैसे वेगिंग करता है, वेग द डॉग, जैसे डॉग वेगिंग करता है। फिर थम वंस नोज, नाक का सवाल है, नाक हमारी कहते हैं अपनी नाक, उनकी नाक, मतलब हिंदी में बोलते हैं नाक का सवाल है। नाक जो है बड़ा हमारा एक तरह से रिस्पेक्ट है एक्चुअली, तो कहते हैं कि नाक रगड़ना, है ना, उन्होंने नाक रगड़ी हमारे, मतलब एक तरह से साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। देन मूविंग नेक्स्ट, दैट इज टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, हवा में किले बनाना। अनरियलिस्टिक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, है ना, कहते हैं अरे यार तो हवा में किले, डोंट बिल्ड अ कैसल, ही इज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर, मतलब नथिंग इज गोइंग टू बी डन, बट देन ही इज जस्ट बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर, हवा में बातें कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। फिर बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना, तो फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक मीन्स बहुत सारे एंड बर्ड्स, है ना, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो फेदर से उड़ते हैं, तो
फ्लॉक बहुत सो मैनी वर्ड्स। तो पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट, हमारे कहते हैं वेवलेंथ ही नहीं मिलती उससे। तो जब कभी किसी से वेवलेंथ नहीं मिलती या हमारा थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है तो हम कहते हैं कि भाई हमारा उससे कोई मैच नहीं है। पर अगर वो बिल्कुल मेरे जैसा है, मेरे जैसा सोचता है, उस सिचुएशन में जब हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग, चाहे वो नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, पर लाइक माइंडेड लोगों का साथ में आना, बोथ द नेबर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनकी सोच एक जैसी है। फिर एम्प्टी वेसल साउंड में मच, तो बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत यूज़ भी होता है ये कि थोथा चना बाजे घना, कि जितना ज़्यादा बर्तन खाली रहेगा उतनी आवाज़ करेगा। मैं अभी कुमार विश्वास का कहीं एक रील देख रही थी तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब बर्तन खाली हो जाता है तो फिर चम्मच आवाज़ करने लगती है उसमें, है ना, और जब तक बर्तन भरा रहता है, जितना भरा रहेगा उतनी कम आवाज़ होगी। तो मुझे अच्छा लगा वो एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि भाई उसी तरह, क्योंकि फिर वो जो लेडल है, जो चम्मच है, वो उसके साथ उसका एक तरह से आवाज़ होने लगती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एम्प्टी वेसल में मेक्स मच नॉइज भी कहते हैं, और एम्प्टी वेसल साउंड मच कुछ भी कह सकते हैं। मीनिंग एक ही है कि एम्प्टी वेसल नहीं रहना है, हमेशा अपडेटेड रहना है, सिंसियर नॉलेज चाहिए, व्हाट्सएप नॉलेज नहीं चाहिए, सोशल मीडिया नॉलेज इज़ नॉट इनफ, अच्छी डेप्थ में आपकी स्टडी होना चाहिए, वैरायटी ऑफ स्टडी होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, किसी चीज़ का थरो नॉलेज होना चाहिए। तो नेचुरली हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अलग होगी। तो इसमें ये है कि जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे अधिक प्रतिभाशाली या जानकार नहीं होते, जैसा कि अक्सर दुनिया में होता है, क्योंकि दिखाना पड़ना, जब दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए इसका मतलब हमारे अंदर डेप्थ नहीं है या ग्रेविटी नहीं है। तो एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, तो वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो हमेशा याद रखो कि जो भौंकेंगे, कहते हैं ना कुत्ते को कि बहुत ज़्यादा भौंकता है और आप खड़े हो जाओ या आप उसको ज़रा सा किक करोगे तो ऐसा करना मत, तो पर वो मार देता है, तो वो डर जाता है, सॉरी वो डर जाता है। तो कहते हैं कि जो जो गरजते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं वो बहुत कम काटते हैं, तो प्रैक्टिकल मत करने लगना। लेकिन ये कहते हैं कि जो हम इसीलिए हमको ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए जो हमें बोल बोल के सुनाते हैं। यार हम कूलली अपना काम साइलेंटली, वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू बी फोकस। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना। अगर सब कुछ अच्छा है तो एंड अच्छा ही होगा। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हमेशा हर काम में रिस्क है, हर काम में मिस्टेक्स होने की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, लेकिन अगर कहते हैं कि दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, if the result of present situation is happy, then all the difficult situations of the past can be forgotten। तो ठीक है, अगर मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल में आप कुछ काम कर रहे हो, लेकिन अगर इन ऑल सब कुछ अच्छा है तो कोई बात नहीं, उसका एंड भी अच्छा ही होगा। माई ग्रैंडफादर एडवाइस मी टू बी पेशेंट एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा ही होगा, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एडवाइस किया। नेक्स्ट, टिट फॉर टेट, है ना। इज़राइल और सॉरी नॉट इज़राइल, तालिबानी और ये ऐसा दे आर इन फेमस फॉर दिस, कहते हैं कि भाई उनके ऐसा कल्चर चलता है कि टिट फॉर टेट, अगर तुमने जो किया उसका वैसा का वैसे ही हम, तुमने मुझे अगर मेरे हाथ को इंजर्ड किया तो मैं भी तुम्हारा हाथ इंजर्ड करूँगा, इस तरह से। तो जैसे को तैसा, व्हेन अ पर्सन टेक्स रिवेंज, तो क्या होगा कि वो उसको वैसा ही जवाब देगा, है ना। तो बदला लेना, रिवेंज, एवेंज, वेंजेंस, प्रतिकार, वेंजियंस मतलब प्रतिकार, मतलब बदले का बदला लेना। तो इट्स ऑल कम फॉर टेट, मतलब जैसे को तैसा। फिर इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, कहते हैं जो गिर गया, जो ख़त्म हो गया, जो ख़राब हो गया, उसके लिए रोने से कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि आप स्पिल्ट मिल्क मतलब दूध को, कहते हैं पूरा रायता ही बिखर गया, रायता मत ढोलो। रायता ढोलना मतलब कि अगर आपने अपनी बात इतनी ख़राब कर दी, लोगों तक पहुंच गई ख़राब तरह से, अब आप उसको कितना करेक्ट करते रहो नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं रायता मत ढोलो। रायता ढोलने का मतलब ही होता है इट इज़ नो यूज़
ऑफ क्राइंग ओवर मिल्क, क्योंकि एक बार अगर वो रायता ढुल गया तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल है, फिर उस पर पछताने से कोई, दूध गिर गया तो वो एक तरह का दूध भी रायता ही है, क्यों, क्योंकि उसको यू कैन नॉट कलेक्ट इट, तो फिर उसको रोने से कोई फ़ायदा नहीं। एक बार जो अगर मान लो गलती हो भी गई तो इट इज़ नो यूज़ ऑफ यूज़ क्राइंग ओवर मिल्क, तो स्पिल्ट मिल्क, तो फिर वो उस पर रोने से कोई पास्ट कैन नॉट बी अंडन, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आई टोल्ड हिम ही डिड नॉट ब्रेक माई फ़ोन इंटेंशनली, सो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मैंने उससे कहा कि तुमसे धोखे से टूट गया फ़ोन, जानबूझ के नहीं तोड़ा था, तो अब कोई मतलब नहीं, वो तो गया, टूटना था तो टूट गया, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। कहते हैं अरे उनसे कैसे बात करोगे यार, ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, ही इज़ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो बड़ा ही फसी काइंड ऑफ फैलो है, वो जिसको आपको डील करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को भी कहते हैं कि द पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ पर्सन इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, उसको क्रैक करना, वो इतना टफ नट है वो कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, या उससे बात करना या निपटना बहुत मुश्किल है, ऐसा। फिर एज यू सो शैल यू रीप, बहुत सालों से हम पढ़ रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। तो ये SOW, सो जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, इसीलिए अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, अच्छा व्यवहार करोगे अच्छा मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर एज यू सो शैल यू रीप, देयरफॉर बी ऑनेस्ट, है ना। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अभी बारिश का टाइम है, तो जितना डार्क क्लाउड मतलब बारिश होने ही वाली है, तो आपकी मुश्किलों का अब एंड है समझो, क्योंकि जितना डार्क क्लाउड, अब बारिश हुई तो फिर सिल्वर लाइनिंग, तो फिर हमेशा उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसको कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ हैप्पी टाइम आफ्टर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्टीज और सैडनेस। कठिनाइयों का, दुखों से गुजरने के बाद हमेशा सुखद स्थिति आती ही आती है ना। तो ये है। फिर नेक्स्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड नीड में, जो फ्रेंड आपके, अ फ्रेंड इन नीड, जब आपको उस फ्रेंड की ज़रूरत पड़ी, इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वही आपका सच्चा दोस्त है। इन डीड मतलब सच्चा, जो नीड में, जो फ्रेंड आपके नीड में आपके साथ खड़ा है, वही आपका सच्चा दोस्त है। तो अ फ्रेंड हु हेल्प्स इन डिफ़िकल्टी इज़ अ ट्रू फ्रेंड, तो वही है। ही स्टेड विद मी इन ऑल माई बेड टाइम्स, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बहुत पुराना है। टेलिंग द ट्रूथ इज़ बेटर देन लाइंग। आप एक बार सच बोल दो कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो पाया, ये मुझसे गलत हो गया तो हो गया। उसकी एक बहुत छोटी सी स्टोरी हमें किसी ने सुनाई थी कि एक बार एक बॉस रहता है, उनके एम्प्लॉयज़ वेकेशंस में जाते हैं, तो वो सबको एक एक सैपलिंग देता है और कहता है कि भाई ये छोटा सा एक पॉट रहता है, उसमें है, और इसकी केयर करना, और जब आप लोग 14-15 डेज़ बाद आओगे, या कुछ दिन का रहता है, 40 डेज़ का शायद रहता है, तो व्हेन यू कम बैक आफ्टर 40 डेज़ देन वी विल मीट एंड देन ब्रिंग इट टू मी, और मेरे लिए लेकर आना, मैं देखूंगा आपने कितनी केयर की। तो सब 40 डेज़ बाद वापस आते हैं एम्प्लॉयज़, और फिर सबके, तो किसी का बहुत ही अच्छा बड़ा एकदम ग्रीन और बहुत फेयरली ग्रोन, और किसी का मीडियोकर रहता है, किसी का कैसा, पर ऑलमोस्ट सबके प्लांट अच्छे हरे भरे रहते हैं। बट वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, हिज प्लांट इज़ डेड, दैट्स अ सैपलिंग इज़ डेड, सो ही ब्रॉट द सेम, एंड देन others say to him that boss will be annoyed, you didn't take care of your plant. So he said no, I took care, but it is dried. तो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब वो बॉस सबको स्टेज में 1 by 1 बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर इसका नंबर आता है, उसको बुलाते हैं, तो कहते हैं कि यू डिडंट केयर ऑफ़ योर ट्री प्लांट। तो वो कहता है कि नो सर, आई डिड केयर बट इट वॉज ड्राइड, सो आई हैड I tried to do so, took care, but then I could not, मैं कुछ कर नहीं पाया, I was helpless। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर सबका हो जाता है, फिर इसका प्रमोशन हो जाता है, जिसका ट्री ड्राई रहता है। तो वो कहते हैं कि बाकी एम्प्लॉयज़ बहुत नाराज़ हो जाते हैं, दे गॉट
अनॉयड कि ऐसा हमारा, हमने तो इतना अच्छा प्लांट लेकर आए, हम तो इतनी केयर की। तब बॉस कहता है कि वो जो प्लांट्स थे, जो सॉरी सैपलिंग्स थे जो मैंने दिए थे, वो ऑलमोस्ट सबके सूखने थे। इतने बड़े बड़े जो आप लेकर आए, ये तो हो ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉट है और इसमें इतना बड़ा प्लांट आप कितनी भी केयर करते तो होता नहीं। तो मुझे पता था, क्योंकि ये जो मैं सैपलिंग है, ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ के सैपलिंग हैं जिसको खूब एयर वाटर सब चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है इतनी गर्मी में। पर आप लोगों ने झूठ बोला, और कुछ लोगों का हो सकता है सच में केयर करने से, आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सच भी हो। लेकिन मैंने इनको इसीलिए प्रमोशन दिया क्योंकि इन्होंने सच बोला। इन्होंने बोला कि भाई हमारा मेरे से सूख गया तो सूख गया। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी विल ऑलवेज गिव यू रिवॉर्ड, ये इसका मतलब है। तो टेलिंग द ट्रूथ इज़ ऑलवेज गुड, नॉट बेटर, बेस्ट इन लाइफ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टू आर इज़ ह्यूमन। भाई हम वही है, उसी का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी अपनी कैपेसिटी है, हम गॉड थोड़ी ना है। तो हमारे से अर मतलब एरर, तो हमसे एरर तो होगी। तो इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस टू मेक मिस्टेक, अदरवाइज वी वुड हैव गॉड और एंजल्स। हम भगवान के गॉड नहीं होते, भगवान नहीं होते तो एंजल्स तो होते, पर हम ह्यूमन हैं। इसका मतलब है टू आर इज़ ह्यूमन, टू मेक एरर इज़ अ ह्यूमन, राइट। इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमंस टू मेक एरर और मिस्टेक्स। So we should learn from our mistakes, as no one is perfect. Yes, same mistake should not be repeated. New mistake we can do, but then always we should learn something from our mistake. It is famously said that to err is human. गलती तो हमसे होती है, ह्यूमन से होती है, हो गई। चलिए नेक्स्ट, where there is a will there is a way। अगर हमने सोचा ही नहीं, चाह ही नहीं है, तो राह नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। If something has the desire to do something, then someone has desire to do something, he can find a way to get it done। तब फिर हम उस डेस्टिनेशन में चलेंगे, हम उस डायरेक्शन में एफर्ट्स करेंगे, हम उस डायरेक्शन में सर्च करेंगे। पर अगर हमारे पास विल ही नहीं है, करने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वे कैसे मिलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमार हो जाओगे तब देखेंगे, अभी तो खाओ, अभी तो बेकरी आइटम्स खाओ, अभी मैक्सिकन फूड खाओ, अभी बाज़ार का खाओ, वेंडर्स का खाओ, तो हम सब कर लेते हैं, तब हम केयर नहीं करते। लेकिन फिर जब बीमार होते हैं तब हम केयर कर लेंगे। तो सबसे अच्छा है कि अभी से केयर करना, जब हम प्रिवेंशन की पहले प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस अच्छा है, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले ही प्रिकॉशन रखो ताकि हम बीमार ही ना पड़े, है ना। तो ये इसका मतलब है। फिर इसके आप सेंटेंसेस देख लेना। इट इज़ बेटर टू गेट योर मेडिकल चेकअप डन एवरी ईयर बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट चेकअप करवाते रहो। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब कोरोना आया तो बहुत लोगों ने उसको ब्लेसिंग समझ के, डिस्गाइज मतलब कि अदर वे किसी दूसरे तरीके से, अगर हमारे पास हमारे कोई मुसीबत आ गई तो उस मुसीबत को एज अ चैलेंज लेके कैसे भुलाना, उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो समथिंग सीमिंगली अनलकी और बैड एट फर्स्ट रिजल्ट्स इन गुड, लेकिन वो शायद अच्छे के लिए होता है। बहुत लोगों ने कोरोना में, नो डाउट बहुत ट्रेजेडीज़ हुई, लेकिन लोगों ने सीखा बहुत, लॉकडाउन में बहुत काम किया, बहुत कुछ लर्न किया। कोई दिल्ली की एक IAS ऑफिसर थी, वो डेंटिस्ट थी एक्चुअली, और उसने थर्ड टाइम शी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर UPSC एंड शी क्वालिफाइड। नाउ शी इज़ एन IAS ऑफिसर इन दिल्ली काडर, कहीं पर है वो, अपाला मिश्रा नाम है उसका, इंटरव्यू आप देखिएगा। तो उसने बहुत बहुत एफर्ट्स करने के बाद एंड शी क्वालिफाइड, शी वाज द डेंटिस्ट एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दैट्स अ clinics were shut down, and that's why she started what we can say that studies for UPSC and she qualified। तो ऐसा होता है। तो that is called blessing in disguise, कि उसने उस बुरे टाइम को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। Now next is let bygones be bygones। जो हो गया वो हो गया,
भूलो। कहते हैं ना कि अगर हम दुनिया में माफ़ करना सीख गए यानी हमने लाइफ में सब कुछ सीख लिया। तो टू फॉरगिव समवन फॉर समथिंग द पर्सन डिड इन द पास्ट, जो आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, अब हम उसी को लेके अगर रहेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। पर हम फॉरगिव टू लेट गो करना सीखना अगर आपको आने लगा, हम सबको आने लगा, तो लाइफ विल बी वेरी इजी। दैट इज लेट गो एक्चुअली। बाय लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जाने दो, राइट, दैट इज। अब ये छोटे छोटे हैं 8-10, ये और बता दो। पीस ऑफ केक इन अ सेंटेंस, unclogging my sink was a piece of cake for Carlita. Carlita, she is a plumber, right? कोई भी, any, whomsoever, extremely easy and straightforward। कहते हैं अब ये अच्छा, ये आप कहते हैं मेरे लिए एक ऐसे लिख दोगे क्या? What's the topic? So topic is election 2024. Oh, yes, I fond of politics and I study so many things and yes, that's a, तो आप अपने फ्रेंड, oh, this topic is a piece of cake for him, वो आसानी से लिख देगा, उसको बहुत नॉलेज है। तो suppose that the work which is very easy to you, that is called piece of cake। let the cat out of the bag, क्या? reveal a secret by mistake, आपसे धोखे से सीक्रेट बाहर आ जाए। कैसे? आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज हॉलीडे फॉर लाइम टू सेलिब्रेट आर वेडिंग एनिवर्सरी, राइट? डोंट लेट द कैट आउट ऑफ बैग, तो कहते हैं सीक्रेट बताना मत उसको, हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अगर आपने धोखे से अपनी मिस्टेक सीक्रेट रिवील कर दिया तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। फिर नेक्स्ट, जज अ बुक बाय इट्स कवर, हम कभी भी बुक देख के, ऊपर देख के, फिजिकल सिचुएशन देख के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत छोटी मेंटालिटी है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। वन पीपल, दोज हु जस्ट डिस्कस द पीपल, है ना। तो वो जो लोग हैं वो बहुत साधारण लोग होते हैं। व्हाट वी कैन से दैट लूजर्स डिस्कस पीपल अबाउट पीपल। वो किसको डिस्कस करते हैं? लोगों को डिस्कस करते हैं। जो लूज़र होते हैं, लूज़र डिस्कस अबाउट पीपल। एवरेज डिस्कस अबाउट, जो एवरेज लोग होते हैं दे डिस्कस अबाउट थिंग्स, तो वो क्या करते हैं? चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और जो ग्रेट पीपल डिस्कस अबाउट आइडियाज़, और जो ग्रेट पीपल होते हैं वो आइडियाज़ की, अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा ट्राई टू बी ग्रेट पीपल, राइट। अंडर द वेदर, जब आप वेदर के इन्फ्लुएंस में आ गए एक तरह से, नॉट वेल, स्लाइटली सिक और इल, तो कहते हैं ना कि आई नो वॉज फीलिंग अंडर द वेदर सो शी लेफ्ट वर्क अर्ली। आज वो जल्दी चले गए ऑफिस से बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा था उसको, शी वॉज सिक। बीट अराउंड द बुश, अरे यहाँ वहाँ की बातें मत करो, कहते हैं ना बीट अराउंड द बुश। अराउंड द बुश तो वो मत करो, बाहर से घास मत मारो। अवॉइडिंग अ सब्जेक्ट बाय टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट थिंग्स, तुम यहाँ वहाँ की बात मत करो, काम की जो पॉइंट की बात है, जो सच है वो बताओ। आई विश माई बॉस वुड स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मीटिंग बुला ली, अब क्या है एजेंडा क्या बता ही नहीं रहे, इधर उधर की बात करें। तो हम कहते हैं ना अरे जल्दी से बताओ बात क्या है। एंड टेल मी व्हाट ही रियली थिंक्स ऑफ माई प्रोडक्ट आइडिया, तो मुझे ये बताओ कि क्या है, आप काम की बात करो। तो दैट इज़ बीटिंग अराउंड द बुश, मीन्स यहाँ वहाँ की बातें करना और काम की बात नहीं करना। फिर वंस इन अ ब्लू मून, तो कहते हैं कि वेरी रेयरली, अच्छा मैं कभी कभी लिखता हूँ, आई राइट वंस इन अ ब्लू मून, आई राइट नॉवल वंस इन अ मून, आई राइट पोएट्री वंस इन अ ब्लू मून, ऐसा, राइट। तो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो ये नेक्स्ट जो हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ये बाद में बताती हूँ। तो ये है। फिर हैव बटरफ्लाइज इन योर, पहले इसको बता दूँ वंस इन अ ब्लू मून। तो हुआन ओनली कुक्स एट होम वंस इन अ ब्लू मून, जो काम आप रेयरली करते हो, राइट। तो आई गो फॉर वॉक वंस इन अ ब्लू मून, आई वेंट फॉर वॉक
और आई यूज टू राइट समथिंग, तो कहते हैं हाँ रेयरली, आई राइट रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून आई रोट अ पोएम, कभी एक पोएम लिखी थी इस तरह से। फिर हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, तो वॉज एक्साइटेड एंड नर्वस, है ना। कैसे, इन अ सेंटेंस, जमाल हैड बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक एज ही वेटेड फॉर हिज डेट आउटसाइड द रेस्टोरेंट, है ना। कैसे कि आपको बटरफ्लाई पेट में, कहते हैं मुझे मुझे कुछ कुछ हो रहा था पेट में, क्यों, घबराहट के मारे। तो हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, तो बटरफ्लाई जब स्टमक में जैसे उड़ती है, ऐसा बोलते हैं मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा था यार, जब मेरा टाइम आने वाला था, उसको कहते हैं। फिर अ टफ कुकी, टफ कुकी मीन्स दैट इज डिटर्मिन्ड एंड फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। टफ कुकी है भाई, इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते आप उसको। तो डेबी अ टफ कुकी, डेबी इज़ अ टफ कुकी, शी डज नॉट माइंड व्हेन पीपल क्रिटिसाइज हर वर्क। तो वो, आप किसी के क्रिटिसिज्म से डरना नहीं, क्योंकि आप बहुत टफ कुकी, अरे लोग कहते रहेंगे, कहने दो, टूटना नहीं कभी भी, है ना, प्रेशर में नहीं, पीयर प्रेशर में नहीं आना। तो ये फिर सी आई टू आई, सी आई टू आई का मैं बता देती हूँ, उसमें नहीं लिखा है। सी आई टू आई का मतलब होता है कि बराबरी से बात करना, फेस टू फेस बात करना है। सी आई टू आई कहते हैं आँख से आँख मिला के बात करो। तो कब करोगे, जब आप इक्वल हो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो दैट इज़ सी आई टू आई। तो ये आज के लिए छोटा सा ईडियम का मैंने वीडियो बनाया, और आई ऑलवेज वुड लाइक टू लिसन यू। माई नंबर इज़ 9422534951। नेक्स्ट टाइम मैं अपना नंबर भी लिख दिया करूँगी। तो एनी टाइम you just drop your message in WhatsApp. I would like to listen you. What kind of video you want to have, what kind of suggestion, your suggestions, precious suggestions are always welcome. तो मुझे लिख कर भेजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे आप ओपनली हमेशा। हाँ, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो आप क्वेरी अपनी WhatsApp में, you can just share your query. So sooner or later I will address your problem. Thank you so much. God bless you.